اسلام آباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی ہماری ہمیشہ ترجیح رہی۔ 24 نومبر کو بیلاروس کے صدر نے اسلام آباد آنا تھا۔ اسٹیٹ گیسٹ کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج کی کال سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرامن نہیں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق کی سفراء سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا وزیر اعظم سے ملاقات پر بے حد خوشی کا اظہار۔ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات پر سعودی ولی عہد کا شکریہ۔ وزیر اعظم کی محمد بن سلمان کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی ریاض میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سمیت کثیر جہتی فورمز پر تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی ریاض میں ون واٹر سمٹ کی کامیاب مشترکہ میزبانی پر صدر میکرون کو مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور فرانس کے مابین زراعت، لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ زندگی پانی کے دم سے ہے، لیکن اربوں لوگ پینے کے صاف پانی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اقتصادی ترقی، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی استحکام کی بنیاد پانی ہی ہے۔ آبی ذخائر کا تیزی سے خاتمہ دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ بنیادی ڈھانچے کے فروغ کے لیے متاثرہ ملکوں کو امداد اور وسائل فراہم کیے جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ریاض میں ون واٹر سمٹ اجلاس سے خطاب۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ملکوں میں شامل۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب سے پاکستان کے آبی وسائل کو شدید نقصان پہنچا۔ ہمارے دریا خشک، گلیشیئرز اور آبی ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ پانی سے متعلق تنازعات کے حل کے لیے علاقائی تعاون اور ڈیٹا شیئرنگ سے متعلق فریم ورک تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ملک کے معاشی استحکام کے لیے حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے ثمرات۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری۔ 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,05,473 پر پہنچ گیا۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ مہنگائی کی شرح 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں واضح کمی آئی۔ ہماری ترجیح معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ معاشی اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ معاشرے میں رواداری اور برداشت کے رویوں کا فروغ ضروری۔ ہم آہنگی، رواداری اور باہمی احترام معاشرے کے اہم ستون۔ معاشرتی استحکام کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔ ڈیپ فیک ویڈیوز خواتین کو بدنام کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس سے متعلق آگاہی کا فقدان ہے۔ ہر پیشے پر مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے میری ویڈیو فیک ہے۔ ڈیپ فیک کے ذریعے خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ پاکستان میں جھوٹی معلومات کا خطرہ۔ پاکستان متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں شامل۔ جھوٹی معلومات کو آئندہ 2 سالوں میں کئی ممالک نے سنگین چیلنج قرار دیا۔ پاکستان میں مس انفارمیشن کے ذریعے فرقہ واریت، مذہبی تنازعات اور سماجی تقسیم کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اگر مس انفارمیشن کو قابو نہ کیا گیا تو یہ سیاسی عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے۔ گلوبل رسک رپورٹ۔ پی ٹی آئی کی دشمنی پاکستان سے ہے۔ ملک کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ کے پی کے سے زبردستی لوگوں کو دھرنے میں لایا گیا۔ بشرا بی بی اور گنڈا پور سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگے۔ جو ہتھیار آپ وفاق کے خلاف اٹھا رہے ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف اٹھائیں۔ گنڈا پور کا اسمبلی میں بیان بغاوت کے مترادف ہے۔ وزیر اطلاعات سے شرجیل انعام میمن۔
1971 में बिहारियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान, दहशतगर्दी फैलाने में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मुक्ति बाहिनी को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया गया। बंगाली बागियों और मुक्ति बाहिनी ने बहुत जुल्म ढाए, पानी और खाने पीने की अद्वियात बंद कर दी, कत्लेआम किया, लाशें सड़कों पर फेंक दी, दफनाने वाला कोई नहीं था। पाक फौज का किरदार बहुत अच्छा रहा। मेंबर बिहारी कम्युनिटी अख्तर हुसैन। सुंबल शहर में भारतीय पुलिस की फायरिंग, मोदी सरकार का अक़लियतों पर एक बार फिर वार। मुसलमान जुल्म सितम का शिकार। हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान 5 मुसलमान शहीद और दर्जनों जख्मी। शाही जामे मस्जिद सर्वे के दौरान भारतीय पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग। बीजेपी गुंडों के खौफ हिरास के बाद मकामी लोग घर छोड़ने पर मजबूर। शहर में कशीदगी के बायस कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय मीडिया। गजा में सिहूनी हमले, मज़ीद 36 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। जंगज़दा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की शदीद क़िल्लत, क़हत का सामना। सर्द मौसम में मज़लूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। जंगबंदी के बावजूद सिहूनी फ़ौज की लेबनान पर भी बमबारी, 12 शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे T20 सीरीज तीसरा और आखिरी मैच कल बुलावायो में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी। पाकिस्तान ने दूसरा मैच 10 विकेटों से जीत लिया। जिम्बाब्वे की टीम शाहीनों के सामने बेबस, 57 रन पर ढेर। सुफियान मुकीम की बेहतरीन बॉलिंग, 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मैच फिगर्स का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। स्टेडियम की तामीर नौ के काम पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सिर्फ 53 रोज में मजमूई तौर पर 80% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मायार का बनाया जा रहा है। नए स्टेडियम में तकरीबन 34,000 शायकीन के मैच देखने की गुंजाइश है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि इस्लामाबाद में रेड जोन सिक्योरिटी हमारी हमेशा तरजीह रही है और इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। इस्लामाबाद में सुफरा से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI की तारीख है, उनका कोई एहतजाज रैली पुरअमन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को जब बेलारूस के सदर का दौरा मुतवक्की था, उस अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान करना हैरान कुन है। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी पार्टी की बदनीयती साबित होती है। इसाक डार ने कहा कि कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। एहतजाज के लिए मकामात का भी तयन किया गया है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा किसी जमात ने माजी में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम पर एहतजाज किया और 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया। इसाक डार ने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी में धांधली भी साबित नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान रियाद में मुलाकात हुई। सऊदी वलीअहद ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात पर इज़हार मुसर्रत किया। उन्होंने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। वन वाटर कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए अपने इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी वलीअहद ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है।
دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے سعودی ولی عہد کا پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات پر شکریہ ادا کیا اور جلد از جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی اپنی دعوت کا اعادہ کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دنیا کی نصف آبادی کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اربوں لوگ پینے کے صاف پانی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی آلودگی بڑھ رہی ہے اور ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ پانی کے مسائل کے حل کے لیے اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے۔ وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ون واٹر سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جس کی تفصیل بتائیں گے ذیشان علی بھٹی اپنی رپورٹ میں۔ آبی تحفظ کے حوالے سے ون واٹر سربراہی اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی عرب، فرانس، قازقستان اور ورلڈ بینک کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ سربراہ اجلاس کا مقصد اعلیٰ سطح سیاسی عزم کے ذریعہ آبی ذخائر کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات طے کرنا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پانی کے مسائل دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پانی کا تحفظ انسانوں کو درپیش اہم چیلنجز میں سے ایک ہے۔ Nearly half of the world's population is facing water scarcity for at least part of the year. Billions remain without clean drinking water as water pollution is rising at alarming levels. We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. وزیراعظم نے کہا کہ ہم سعودی عرب، فرانس، قازقستان اور ورلڈ بینک کی جانب سے پانی کے اہم مسئلے پر بروقت اجلاس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پانی ہی اقتصادی ترقی، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی استحکام کی بنیاد ہے۔ Pakistan is no stranger to these challenges. Our rivers, glaciers and aquifers are increasingly vulnerable to the impact of climate change and population growth. To this day, we are still grappling with the 2022 catastrophic floods that hit Pakistan like never before. وزیراعظم نے کہا کہ پانی سیاسی حد بندیوں سے بالا قوموں کو جوڑتا اور مشترکہ ایکو سسٹم بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی سے متعلق تنازعات کے حل کے لیے علاقائی تعاون اور ڈیٹا شیئرنگ سے متعلق فریم ورک تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ Pakistan therefore attaches great importance to transboundary cooperation. The Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's waters, is one example of such an arrangement. Yet, in recent years, the treaty has come under unprecedented stress due to a number of factors, including construction of upstream dams. Its effective functioning is key to maintaining regional peace, stability, and progress. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عالمی سطح پر پانی کے مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز میں کہا کہ مختلف ملک پانی سے متعلق تحقیق اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ کریں۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ Our Recharge Pakistan initiative aims to address climate-induced flood risks and mitigate drought impacts through ecosystem-based adaptations. وزیراعظم نے کہا کہ عالمی آبی تنظیم کے قیام پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دور اندیش قیادت قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عالمی آبی تنظیم کے اقدام کا حصہ ہونے پر فخر ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان اور فرانس نے زراعت، لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ مہارتوں میں ترقی اور پینے کے صاف پانی کے شعبوں میں بزنس ٹو بزنس روابط کے ذریعے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ریاض میں ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے ون واٹر سمٹ کی کامیاب مشترکہ میزبانی پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو مبارکباد دی۔ موسمیاتی تبدیلی اور ترقیاتی امور پر فرانس کے قائدانہ کردار کو سراہتے ہوئے وزیراعظم نے 2022 کے تباہ کن سیلاب کے تناظر میں فرانس کی پاکستانی عوام کے لیے بھرپور حمایت کو سراہا۔ پاکستان فرانس تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں بشمول سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے ساتھ اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बिलखुसूस मौसमियाती मुवाफ़क़त और काबिल तजदीद तवानाई से इस्तिफ़ादा हासिल करने की दावत दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अलावा इलाकाई और आलमी मसाइल के हवाले से रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की मुश्तरका ख्वाहिश का भी इआदा किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स इस वक्त 616 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,05,000 की हद उबूर करते हुए 1,05,175 पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी कमी हुई है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कैपिटल मार्केट की मज़ीद तफसील जान लेते हैं। ज़मीर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और अच्छा दिन स्टॉक मार्केट सुबह से ही तेज़ी में देखने में आ रही है और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 914 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट 1,05,000 की हद अबूर करते हुए 1,05,473 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद आने वाले ज़री पॉलिसी में शरह सूद में मज़ीद कटौती का इम्कान है, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी न सिर्फ आज हो रही है बल्कि 16 तारीख तक बरकरार रहेगी, क्योंकि महंगाई की शरह में बहुत ज़बरदस्त किस्म की कमी आई है। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शरह सूद में भी 200 बेसिस पॉइंट की कमी हो सकती है। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंटरेस्ट रेट होगा ये तकरीबन सिंगल डिजिट में भी जा सकता है, क्योंकि मईशत बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से तमाम मौशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ने जो बैंक्स को ADR 50% अचीव करने का टारगेट दिया था, वो बैंक्स ने 47% अचीव कर लिया है। ADR मतलब कि एडवांस डिपॉजिट रेशो, यानी कि आप अपने पास जो पैसे रखे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स करें लोन्स की सूरत में, एडवांसेस की सूरत में, ताकि लोग अपना कारोबार बढ़ाएं। और इस कंडीशन के बाद हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग हो रही है और लोग ज़्यादातर पैसा जो है स्टॉक मार्केट तरफ ला रहे हैं। इसके साथ साथ जो बॉन्ड्स हैं और ट्रेजरी बिल्स हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि कट ऑफ यील्ड्स काफ़ी कम हो गई हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब बॉन्ड्स की तरफ जाने के बजाय अपना पैसा बैंक से निकाल के अगेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही रीज़न है कि हम देख रहे हैं कि तकरीबन थोड़े ही अरसे में 10,000 से ज़ायद इन्वेस्टर्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक मार्केट की जो सलाहियत है उसको जाहिर करता है और ये काफ़ी खुशाइन भी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 10 पैसा कमी भी हुई है। इस कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 77 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 87 पैसे पे बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती पॉलिसीज के बाद मुल्क के मौशी अशारे जितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम मौशी चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर आपका। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं, माशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। हमने अब माशी बुनियादों के इस्तेहकाम को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत में बेहतरी के बाद पॉलिसी रेट में कमी आई है। पॉलिसी रेट में कमी से सनत तरक्की करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि हाउसिंग के शोबे का मईशत में अहम किरदार रहा है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। उन्होंने कहा कि कम लागत के घरों की तामीर अहम है। घरों की तामीर के लिए शरह सूद में कमी अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि सस्ते घरों की तामीर में माइक्रो फाइनेंस बैंकों का अहम किरदार होगा। अब हुकूमत मकामी सतह पर कर्जे नहीं लेगी। हुकूमत निजी शोबे की हर सतह पर सपोर्ट के लिए तैयार है। हुकूमत अब माजी की गलतियों को नहीं दोहराएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत का काम पॉलिसी का तसलसल और दुरुस्त माहौल फराहम करना है। हुकूमत हर जगह अपना ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने मुआशरे में रवादारी और बर्दाश्त के रवैयों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में अमन, हम आहंगी और इंसाफ के फ़रोग़ में मज़हब के किरदार पर सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस्लाम उख़ुव्वत और भाईचारे का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि अमन, हम आहंगी, रवादारी और बाहमी एहतराम मुस्तहकम मुआशरे के सुतून हैं। उन्होंने पैगाम पाकिस्तान को बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और इत्तदाल पसंदी का संग मील करार देते हुए कहा कि ये एक ऐसा रोड मैप है जो पाकिस्तान को एक पुरअमन और तरक्की पसंद माशरा बनाने की राह पर गामजन है।
वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा है कि पाकिस्तान खूबसूरत और वसाइल से मालामाल मुल्क है, हमें अपने वसाइल का बेहतर और मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के दोबारा तस्वुर से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तलबा के अंदर सोच पैदा करने की ज़रूरत है कि हम एक ज़िम्मेदार कौम हैं। उन्होंने कहा कि जापान अपने GDP का 70% मनसूबाबंदी और तहकीक पर लगाता है, हमें भी आबादी पर काबू पाने की मनसूबाबंदी करना होगी। हज दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में 7 दिन की तौसीह कर दी गई है। वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिह हुसैन ने अपने बयान में कहा कि दूर दराज इलाकों में हज दरख्वास्तें देने में मुश्किलात के बायस फैसला किया गया है। आज़मीन हज की दरख्वास्त पर वसूली में सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तें अब 10 दिसंबर तक नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकेंगी। 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक हज दरख्वास्तें जमा कराने वाले तमाम आज़मीन हज को कामयाब करार दे दिया गया है। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मासूल होने वाली तमाम हज दरख्वास्तें भी कामयाब करार दी गई हैं। चौधरी सालिह हुसैन ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करवा दें। नाज़रीन, पंजाब की तारीख के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज आज से किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब पंजाब यूनिवर्सिटी में होगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया। 130 अरब रुपए के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 68,000 से ज़ायद तलबा की दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें 65 यूनिवर्सिटीज़, 359 कॉलेजेस और 12 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने अप्लाई किया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम हर साल 30,000 नौजवानों के ख्वाब पूरे करने में मुआविन होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में अम्मा चिल्ड्रन अकेडमी यतीम बच्चों और बच्चियों की कफालत का इदारा है, जिसका क़याम 2011 में अमल में लाया गया। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ की सरपरस्ती में चलने वाले इस इदारे का मकसद यतीम बच्चों को मुफ्त और मयारी तालीम की फराहमी है। ये इदारा यतीम बच्चों की कफालत में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। एकेडमी बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें, खाना, ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की सहूलियात फराहम करती है। क़याम से लेकर अब तक एकेडमी से 1,500 बच्चे फारिगुल तहसील हो चुके हैं, जबकि 600 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इलाके के अवाम और मुशरान, खुसूसन बच्चे और बच्चियाँ इस इदारे की सरपरस्ती के लिए फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ताउन के शुक्रगुजार हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि डीप फेक वीडियोस ख़वातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत जब हत्या के इज्जत का कानून लाई तो कुछ लोगों ने तनकीद की, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये कानून दुरुस्त है। अस्मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतालिक आगाही कम है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम यूनिट और ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अस्मा बुखारी का कहना था कि फ़ेक वीडियोज़ के मामले में मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। बैनुल-अक़वामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। झूठी मालूमात या मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया को दरपेश सबसे बड़े खतरात में से एक बन चुकी है और आलमी इक़्तिसादी फोरम की 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के माहिरीन ने झूठी मालूमात और गलत बयानी को आइंदा 2 सालों में कई ममालिक के लिए एक संगीन चैलेंज करार दिया है। और ये मसला न सिर्फ माशरती बल्कि इक़्तिसादी, सियासी और माहौलियाती शोबों में भी गहरे असरात डाल रहा है। पाकिस्तान में झूठी मालूमात और गुमराहकन गलत बयानी के खतरात आइंदा 2 सालों में सबसे ज़्यादा अहम चैलेंजेस में शामिल हो सकते हैं और झूठी मालूमात के ये खतरा मुल्क को दरपेश मजमूई चैलेंजेस में 4थे से 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए फ़िरक़ावारियत, मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है, जिससे माशरती हम आहंगी मुतासिर हो रही है। ये मसला न सिर्फ समाजी इंतशार बल्कि सियासी बेचैनी, जमहूरी इदारों की साख और अवामी एतमाद को मुतासिर कर रहा है। भारत में ये खतरा पहले जबकि अमरीका में 6ठे नंबर पर है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के तज्ज़िये के मुताबिक अगर इस मसले को काबू ना किया गया तो ये जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने और सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। नाज़रीन, सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ रही है। पाकिस्तान में शरह सूद कम हो रहा है और जब भी मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जाती है तब PTI किसी न किसी साजिश के साथ सामने आ जाती है। PTI की लीडरशिप पाकिस्तान को हर किस्म का नुकसान पहुँचाने के लिए शब और रोज़ मसरूफ है। जब हुकूमत ने सख्ती का मुजाहरा किया तब वहाँ से PTI की लीडरशिप सबसे पहले भाग निकली। उनके सारे लीडर, इनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। सबसे पहले बुशरा बीबी और बड़ी बड़ी
बातें करने वाले गंडापुर भागे। एक सवाल के जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI की दुश्मनी पाकिस्तान से है, ये पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पर बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। PTI ने पाकिस्तान को मुल्की इदारों और सियासी जमातों को मुतनाज़ा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पाक भारत की जंग 71 तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखती है। खित्ते में हमेशा से दहशतगर्दी को फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की पुष्पनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। जंग 71 में भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया। दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी ने निहत्ते मासूम लोगों खसूसन बिहारी कम्युनिटी के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर वो मजालिम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अख्तर हुसैन भी उन मुतासरा पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और अजमत के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अख्तर हुसैन की आप बीती लाहिजा कीजिए। इंदिरा गांधी ने ये मौका देख के कहा भाई अपने आदमी को ले जाओ। इतने में जो है ना उसने अपने मुक्ति बानी अपने फौजियों को सिविल ड्रेस में पहना करके और दाखिल कर दिया ढाके के अंदर में, इस पाकिस्तान के अंदर में। बस वो लोग बंगालियों के साथ मिलकर तकरीबकारी शुरू कर दिया। जगह जगह बम ब्लास्ट करना, मारना, उर्दू स्पीकिंग को भी और फौजियों को भी जहाँ देखना मारना। ये सिलसिला चलता रहा। पानी बंद कर दिया था बंगालियों ने, खाने पीने का सिस्टम बंद कर दिया था। सब आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी ने बेचारों ने बड़ा मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से सब बंदोबस्त किया। बंगालियों ने और मुक्ति बानियों ने उर्दू स्पीकिंग को मार के काट के फेंका। वो जुल्म आप देख नहीं सकते, जिस तरह लाशें पड़ी रहती थी कोई उठाने वाला नहीं। उन्होंने जो जुल्म किया, ज्यादती की औरतों के साथ, लोगों के साथ, ये तो सब मैंने अपने आंखों से देखा है। जो बंगाली जो आपके दुआ सलाम वाले थे वो बेचारे भी मजबूर थे, उनको भी मारा। नाज़रीन, महकमा सोशल वेलफेयर, सिविल इंतजामिया और पाक फौज के इश्तराक से बलूचिस्तान में खसूसी सलाहियतों से महरूम अफराद का आलमी दिन मनाया गया। इस तकरीब में शरीक खुसूसी अफराद को ही बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब का मकसद अवाम में माजूर अफराद के मसाइल, मुसावी हुकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। ऐसे अफराद भी मुआशरे का कारआमद फ़र्ज साबित होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी किसी कमी को आड़े नहीं आने दिया और हिम्मत और हौसले से हालात का मुकाबला किया। खुसूसी अफराद ने मिलकर सिविल इंतजामिया और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर देते हुए इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाने का मुतालबा किया है। जनरल असम्बली में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया समेत 157 मुल्कों ने करारदाद के हक़ में वोट दिए, जबकि अमरीका और इसराइल समेत 8 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की। जनरल असम्बली ने बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया। असम्बली के बयान के मुताबिक दोनों रियासतों को 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर एक दूसरे के बराबर अमन और सलामती के साथ रहना चाहिए। 2 रियासती हल को हकीकत बनाने की सिफारती कोशिशों के लिए जनरल असम्बली ने जून 2025 में न्यूयॉर्क में एक आला सतही बैनुल-अक़वामी इजलास तलब किया है, जिसकी मुश्तरका सदारत फ्रांस और सऊदी अरब करेंगे। असम्बली ने फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिले तनसीख हकूक़ और बुनियादी तौर पर हक़ खुद इरादियत और उनकी आज़ाद रियासत के हक़ के हुसूल का मुतालबा किया। बयान में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी किनारे, मशरक़ी बैतुल मक़दस और गज़ा पर इसराइल का गैर कानूनी कब्जा समझते हैं। आलमी अदालत इंसाफ के हालिया फैसलों के हवाले से जनरल असम्बली ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और आबादकारी की तमाम नई सरगर्मियाँ रोक दे। जनरल असम्बली के सदर फ्लेमोन योंग का कहना था कि ताकत या कब्जे के जरिए अमन और सलामती हासिल नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुसलसल इनकार तशद्दुद और मायूसी का सबब बन रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल नुमाइंदे रियाद मंसूर ने कहा कि फ़लस्तीन का सवाल अक़वाम मुत्तहिदा के आगाज़ से ही उसके एजेंडे पर रहा है और ये इसकी सदाकत और इख्तियार और बैनुल-अक़वामी कानून पर मबनी निज़ाम के वजूद का अहम तरीन इम्तिहान है।
नाज़रीन, गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। काबिल सियोनी फ़ौज ने बैतुल्लाही और रफ़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में 36 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 96 ज़ख्मी हो गए। बमबारी से मुतादिद इमारतें तबाह हो गई और मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने की इत्तलात के बाद हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मकबूजा मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,500 से तजावुज़ कर गई। लबनान में जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की खिलाफ वर्जियां जारी है, जिसके बायस मुआहदा ख़त्म होने का खदशा बढ़ गया है। लबनान पर ताज़ा सेहूनी हमलों में 12 अफराद जामाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। जनूबी कोरिया के हिज़्ब इख्तिलाफ ने सदर युआन सोक यूल और सीनियर सिक्योरिटी मुआवनीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क में मार्शल लॉ के ऐलान में मुलव्वस सदर, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, फ़ौज और पुलिस की मरकज़ी शख्सियत के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर किया जाएगा। अपोजिशन पार्लियामेंट के जरिए सदर को माजूल करने की कोशिशें कर रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सदर युआन सोक यूल से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर उन्हें माजूली के इक़दाम का सामना करना होगा। सदर यूल ने गुज़िश्ता शाम अचानक मुल्क में हंगामी मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया था। मार्शल लॉ का ऐलान 6 घंटे से ज़्यादा जारी न रहा, जब पार्लियामेंट ने सदर का फरमान मनसूख करने के हक़ में वोट दिया। बाद अज़ां मार्शल लॉ का ऐलान सरकारी तौर पर वापस ले लिया गया। ताहम जनूबी कोरिया की फ़ौज ने कहा है कि सदारती हुक्म वापस होने तक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहेगा। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में कश्मीरी नौजवान को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने नौजवानों को मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। जिला पुलवामा के इलाके तराल में भी मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जम्मू खित्ते के ज़िला उधमपुर में 2 कश्मीरी खवातीन मरियम बेगम और अरशद बेगम को तहरीक आज़ादी की हिमायत करने के इल्ज़ाम पर काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी भी शख्स को बगैर किसी मुकदमे के 2 साल तक नज़रबंद किया जा सकता है। मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए इस कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। भारत ने खित्ते में जमहूरियत की आड़ में सिर्फ और सिर्फ फिस्तायत को फ़रोग़ दिया है। भारत जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के नाम पर फिस्तायत को रिवाज दे रहा है और तमाम जमहूरी अक़दार को पामाल कर रहा है। मोदी के जंगी जनूर और इंतहा पसंद सोच के बायस भारतीय फौज के एहलकार खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हाल ही में शुपियां और किश्तवाड़ में 2 भारतीय एहलकारों ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुदकुशी कर ली। खित्ते में अपनी गिरफ्त मजबूत और भारतीय बालादस्ती को कायम रखने के लिए बीजेपी हुकूमत ने 8 लाख से जायद फौजी और 3 लाख से जायद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए हैं। CRPF एहलकारों में खुदकुशी का बढ़ता हुआ बहरान, सख्त काम के हालात, तनाज़ात वाले इलाकों में तवील तैनाती और मुतनाज़ा पॉलिसियों को नाफिज करना दबाव का शिकार हैं। 2011 से 2023 तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के 1,500 से जायद जवानों ने खुदकुशी की है, जबकि गुज़िश्ता साल CRPF के जवानों में खुदकुशी के कुल 52 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। मुसलमानों के खून से होली खेलना भारतीय इंतहा पसंदों का मशगला बन चुका है। हाल ही में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर संभल में हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान 5 मुसलमान शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदुओं की जानिब से शाही जामे मस्जिद सर्वे के दौरान भारतीय पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मोदी के गुंडों के खौफ व हिरास के बाद मकामी लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर में कशीदगी के बायस कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। मकामी लोगों के मुताबिक भारतीय पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है, जिसमें मोदी हुकूमत भी खामोश है। रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इराक में आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया सूदानी, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात की। मुलाकातों में सलामती, दिफाई ताउन, इलाकाई सूरत हाल समेत दिलचस्पी के अहम शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन बढ़ाने और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को इराकी मुसल्लह फ़ौज के हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर चाको चौबंद फ़ौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इराकी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया और इराकी सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा। पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल यस्तुरुल हक मुल्क लाहौर में इंतकाल कर गए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने एडमिरल यस्तुरुल हक के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है।
यस्तरुल हक ने 1954 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया था और उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग 65 और 71 में भी हिस्सा लिया था। एडमिरल यस्तरुल हक 1988 से 1991 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक़ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल यस्तरुल हक की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहलकाना के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि एडमिरल मुल्की दिफ़ा और सलामती के लिए खिदमात उनकी नाकाबिल फ़रामोश हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी साबिक़ नेवल चीफ एडमिरल यस्तरुल हक की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार किया है। सदर ममलकत ने साबिक़ सरबराह पाक बहरिया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करते हुए मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर ममलकत ने मुल्की दिफ़ा और सलामती के लिए मरहूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास कराची में जारी है। वज़ीर आला सिंध ने इजलास में तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और मयार को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज़ को अपने महकमों को मुतल्लिक़ा तरक्याती मनसूबों की निगरानी करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने कराची के अहम मनसूबे जो डोनर्स या सिंध हुकूमत के साथ मंजूरी के मरहले पर हैं उन पर तवज्जो मरकूज़ करने की भी हिदायत दी। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बैंकों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि बैंक मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और पंजाब बैंक में जदीद इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। मजबूत, शफाफ और मुनसिफाना मालियाती निज़ाम का क़याम उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का विजन है। मरियम नवाज शरीफ ने बैंकों के आलमी दिन के मौके पर मालियाती तंजीमों, माहिरीन और माशी तरक्की के हर स्टेक होल्डर को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर महकमा ज़राअत तौसीम मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर एहतमाम मेगा फार्मर गैदरिंग बराए गंदम का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे के अफसरान और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि काश्तकार फी एकड़ गंदम की पैदावार में इजाफा करके अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। गंदम की भरपूर पैदावार के लिए वक्त पर काश, बीज को दवाई लगाना और जड़ी बूटियों का मौसर कंट्रोल शामिल है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब ने ज़्यादा गंदम काश्त करने वाले किसानों को मुफ्त लेज़र लेवलर और मुफ्त ट्रैक्टर देने का ऐलान किया है। इसके अलावा काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम लगाएं और मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और महकमा ज़राअत तौसीम मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर तमाम चेलियांवाला में काश्तकारों के लिए फार्मर डे का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत पंजाब शेख मोहम्मद इकबाल और प्रोफेसर ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद शहबाज ने किसानों को ज़्यादा गंदम उगाव की तरगीब और मुनाफा बख्श काश्त के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। काश्तकारान ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा ने भी किसानों से मुशावरत की और उनको गंदम की फसल के पैदावारी मराहिल पर बुनियादी और जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की सरपरस्ती में ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बासलाहियत नौजवानों को कारोबारी तरबियत मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कोहर्ट 3 ग्रेजुएशन की तकरीब की सदारत वाइस चांसलर ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर खान ने की। 14 ग्रेजुएट्स को स्टार्टअप सर्टिफिकेट्स दिए गए। इस मौके पर ग्रेजुएट्स ने अपने शुरू किए गए कारोबार और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से हासिल की गई तरबियत की तफसीलात से आगाह किया। हम बेसिकली बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो रादर जॉब सीकर्स वो जॉब प्रोवाइडर्स बने। वो इसी तरह से हो सकता है अगर वो अपने बिजनेसेस एज ए एंटरप्रेन्योर वो शुरू करें और उसमें लोगों को इंगेज करें। उम्मीद है कि ये स्टार्टअप्स जो है आगे जाकर बड़ी कंपनियां बना सकेंगे। यहाँ पे मेरे स्टार्टअप का ये मुझे फ़ायदा हुआ कि हम यहाँ से मैंने एक अर्ली अपना शुरू किया और इस वक्त हमारी जो कस्टमर रीच है वो ओवर 100,000 है। तकरीब में मकालमे के दौरान मुख्तलिफ माशी माहिरीन ने नौजवानों को पाकिस्तान में कारोबार के मौके से मुतालिक आगाही दी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। मुनासिब खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। गिलगित में महकमे समाजी बहबूद के डायरेक्टोरेट में मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। इस हवाले से गिलगित से रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन सफ्तर। खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। महकमा समाजी बहबूद के ज़ेर एहतमाम गिलगित में मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में बड़ी तादाद में खुसूसी अफराद ने शिरकत की। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम इनको सपोर्ट करते हैं, जिसमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट देते हैं। हम भी इस माशरे का हिस्सा है और हमें भी आगे लाने के लिए गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे। जो मेरी तरह मतलब स्पेशल पर्सन्स हैं उनको
کہ آپ اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی ویکنیس نہ بنائیں بلکہ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تقریب کے دوران خصوصی افراد کے نمائندوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کیا۔ صوبائی وزیر نے خصوصی افراد کے تمام مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے خصوصی افراد میں شیلڈز اور دیگر ضروری سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں خصوصی افراد کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پر مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شاہین صفدر، پی ٹی وی نیوز، گلگت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن پر آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر نے ڈسٹرکٹ جیل قصور میں جوتے بنانے کے یونٹ کا افتتاح کیا۔ قصور سے چودھری وسیم کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کی جیلوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن پر اسیران گھر والوں پر بوجھ بننے کی بجائے اب روزگار کے ذریعے ان کا سہارا بنیں گے۔ قصور کے شوز انڈسٹری کے عہدیداران نے آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کو قصور، ساہیوال، گجرانوالہ، فیصل آباد اور لاہور کی جیلوں کے لیے جوتے بنانے کی مشینری و آلات حوالے کیے۔ شو میکر ایسوسی ایشن سے رابطہ کیا، ان سے بات چیت کی اور انہوں نے ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں رسپانس دیا۔ نہ صرف قصور جیل میں پورے جوتا بنانے کا سسٹم ہم نے لگا لی ہے بلکہ انہوں نے 4 مزید جیلوں کے لیے سینٹرل جیل گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور اور ساہیوال ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ یہ مٹیریل اور مشینری پرووائڈ کی۔ آئی جی پنجاب جیل خانہ جات نے قصور میں شوز ایسوسی ایشن اور سپرنٹینڈنٹ جیل میاں عمیر کے ہمراہ جوتے بنانے کے یونٹ کا افتتاح کیا اور اسیران کے کام کا جائزہ لیا۔ چودھری وسیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، قصور۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں تمام گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اینٹی سموک مہم کے سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں تمام صوبائی وزارتوں کے سیکرٹریز اور پنجاب بھر کے تمام کمشنرز کو حکم نامہ بھجوایا گیا کہ وہ اپنے زیر انتظام تمام محکموں کے زیر انتظام گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ پنجاب حکومت نے 30 جنوری تک صوبے بھر کی تمام چھوٹی بڑی گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا ہے۔ اور لاہور میں تیز ہوائیں چلنے کے باعث خنکی کا احساس بڑھ گیا ہے جبکہ فضائی آلودگی میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مدثر خان سے۔ جی مدثر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ باغوں کے شہر لاہور میں اسموک کی شدت میں نمایاں کمی آئی ہے جس کے باعث فضائی آلودگی میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 174 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تیز ہوائیں چلنے کے باعث سردی اور خنکی کا احساس بڑھ گیا ہے جبکہ لاہور میں ہواؤں کے چلنے کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب کم ہونے کی وجہ سے بھی اسموک کی شدت میں کمی آئی ہے۔ آج ہوا میں نمی کا تناسب 54% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق اسموک کا باعث بننے والے عوامل کے خلاف مؤثر اور تیز کارروائیوں کے باعث جو ہے وہ اسموک کی شدت میں کمی آئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسموک SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور مختلف مقامات پر چھاپے مار کے جو ہے وہ جرمانے بھی عائد کیے گئے جبکہ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ حکومت پنجاب کے مطابق اسموک کے تدارک کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور اسموک کا باعث بننے والے عوامل جو ہیں ان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی علاقہ جات میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے اکثر اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں بوندا باندی ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -9، سکردو -5، کالام میں -4 اور ہنزا میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ایک غلط قدم اور گیم ختم۔ کشتی سے غیر قانونی سفر کا خطرہ مول لینا اپنی زندگی اور پیسہ ضائع کرنا ہے۔ آسٹریلیا ویزے کے بغیر آنے والوں کو کوئی ویزا نہیں دیتا ہے۔
आपको रोक दिया जाएगा, लुटा दिया जाएगा और आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में आबाद नहीं होने देंगे। कोई दूसरी बारी नहीं। इंसानी स्मगलरों के हाथों कैच होकर आउट ना हो जाएं। कानूनी रास्ता ही वाहिद रास्ता है। गैर कानूनी मुंतकली का सिफर इम्कान।